Today we are starting a new chapter, chapter 4, that is psychological disorder. It is a very important chapter and it will cover 10 marks. Students, you must have come across people who are unhappy, troubled and dissatisfied. Their minds and hearts are filled with sorrow, unrest and tension, and they feel that they are unable to move ahead in their lives. They feel life is a painful, uphill struggle, sometimes not worthy living. At times, some of you may have felt nervous before an important examination, tense and concerned about your future, career, or anxious when someone close to you was unwell. All of us face major problems at some points of our lives. However, some people have an extreme reaction to the problems and stresses of life. In this chapter, we will try to understand what goes wrong when people develop psychological problems. What are the causes and factors which lead to abnormal behavior, and what are the various signs and symptoms associated with different types of psychological disorders. So firstly, we will discuss concept of abnormality and psychological disorder. Psychological disorders. The word abnormal literally means away from the normal. It implies deviation from some clearly defined norms or standards. साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है? Here डिसऑर्डर मीन जो चीज़ ऑर्डर में नहीं है. अब हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की. तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मीन जो किसी पर्सन के माइंड और बिहेवियर से रिलेटेड हो, वो डिसऑर्डर्स क्या कहलाते हैं? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. इट मीन्स जब किसी का बिहेवियर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ना हो तो उसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं. If we talk about literally meaning of abnormality, it's something that is not usual, expected or normal. But abnormality के इस general meaning के साथ हम abnormality को ठीक नहीं कर सकते. So हमें उसके लिए abnormality की एक proper definition देनी होगी. So we have decided 4 Ds. अगर ये 4 Ds किसी पर्सन में कॉन्स्टेंटली होंगे तो हम उसे एबनॉर्मल कहेंगे. The first D is deviance, different, extreme, unusual, even bizarre. जब हम दूसरे लोगों से अलग हटकर काम करते हैं, कुछ अनयूजुअल करते हैं, नॉर्मल बिहेवियर से हटकर काम करना. ऐसा नहीं है कि जो लोग कभी कभी ऐसा करें वो एबनॉर्मल है, बल्कि जो लोग कॉन्स्टेंटली ऐसा करें तो वहाँ हम समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी है. The second is distressing, unpleasant and upsetting to the person and to others. Distress वाली जो फीलिंग होती है, that is unpleasant and upsetting to the person, जो उसे डील कर रहा है उसके लिए भी, and to the others, और लोगों के लिए भी, like family members और colleagues एक्सेट्रा. क्योंकि ऐसे पर्सन एंजाइटी, स्ट्रेस से भरे होते हैं और खुद तो अफेक्टेड होते ही हैं, साथ ही दूसरे लोगों पर भी निगेटिव इफेक्ट डालते हैं. द थर्ड इज डिसफंक्शनल, इंटरफेयरिंग विद द पर्सन्स एबिलिटी टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज इन अ कंस्ट्रक्टिव वे. When someone fails to do daily activities, that is called dysfunction. इसमें या तो उसकी बॉडी या माइंड फंक्शन नहीं कर पा रहे होते हैं या फिर वो डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर पाता है. द थर्ड इज डेंजरस टू द पर्सन और टू अदर्स. ऐसा पर्सन या तो खुद को हार्म पहुंचा सकता है या उसके आसपास के लोगों को भी हार्म पहुंचा सकता है. सो इफ वी फाइंड दीज 4 Ds constantly in any person, then we can say that person comes in the category of abnormality. But students, यहाँ पर ये ध्यान देना ज़रूरी है कि ये चारों Ds कभी ना कभी सभी लोगों की लाइफ में विजुलाइज हो जाते हैं, बट इट डजेंट मीन दैट दे आर एबनॉर्मल, बिकॉज कई बार एंजाइटी, स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो जाता है. बट एक नॉर्मल पर्सन उससे जल्दी बाहर निकल आता है, बट इन एबनॉर्मल पर्सन दीज 4 Ds रिमेन कांस्टेंट. In psychology, we have no ideal model or even normal model of human behavior to use as a base for comparison. Psychology में कोई भी human
परफेक्ट मॉडल नहीं है नॉर्मैलिटी का, जिससे हम ये कंपैरिजन करके बता सकें कि दूसरा पर्सन नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। To solve this problem, various approaches have been used in distinguishing between normal and abnormal behaviors. From these approaches, there emerge two basic and conflicting views. The first approach views abnormal behavior as a deviation from social norms. Many psychologists have stated that abnormal is simply a label that is given to a behavior which is deviant from social expectations. पहली जो अप्रोच है वो क्या कह रही है? वो कह रही है जो पर्सन डेविएट करता है सोशल नॉर्म से, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल. Deviation from social norms is a definition of abnormality where a behavior is seen as abnormal if it violates unwritten rules about what is acceptable in a particular society. Social norms क्या हैं? जिस भी सोसाइटी, कल्चर, इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो वहाँ के नॉर्मल रूल्स या जो चीज़ें वहाँ के लिए एक्सेप्टेबल हैं, दैट इज सोशल नॉर्म्स. तो अगर कोई पर्सन उन रूल्स के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है तो उसे नॉर्मल मानेंगे, बट अगर उसका बिहेवियर अलग हटकर है उन सोशल नॉर्म्स से तो उसे एबनॉर्मल मानेंगे. ए सोसाइटीज नॉर्म्स ग्रो फ्रॉम इट्स पर्टिकुलर कल्चर इन इट्स हिस्ट्री, वैल्यूज, इंस्टीट्यूशंस, हैबिट्स, स्किल्स, टेक्नोलॉजी एंड आर्ट्स. हर कल्चर के डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया फैमिली एंड कॉपरेशन को वैल्यू दी जाती है, सो यहाँ एग्रेशन को नॉर्मल नहीं माना जाता. बट इन वेस्टर्न कल्चर जहाँ इंडिविजुअलिटी पर फोकस किया जाता है वहाँ एग्रेशन इज कंसीडर्ड एज नॉर्मल. द सेकेंड अप्रोच व्यूज एबनॉर्मल बिहेवियर एज मालएडेप्टिव. साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट द best criterion for determining the normality of behavior is not whether society accepts it, but whether it fosters the well-being of the individual and eventually of the group to which she or he belongs. The second approach is universal. It is not culture biased. So firstly we will know what is adaptive behavior. Adaptive behavior क्या होता है? अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना, फुलफिलमेंट्स ऑफ हिज नीड्स बोथ मेंटल एंड फिजिकल. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन अपने टैलेंट, पोटेंशियलिटीज़ को प्रॉपरली यूज़ करना अपने गोल को अचीव करने के लिए. सो अगर कोई ये सारी चीज़ें ना करके इनएबिलिटी शो करे स्ट्रेस को हैंडल करने में, गोल अचीव करने में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने में, देन ही इज मालएडेप्टिव. ऐसा पर्सन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर नहीं करता, अपने आप को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाता, स्ट्रेस नहीं झेल पाता. देयर मे बी सो मैनी साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रीजन्स ऑफ मालएडेप्टेशंस, बट रीज़न चाहे कुछ भी हो, अगर किसी पर्सन में मालएडेप्टेशन है तो वो एबनॉर्मेलिटी की कैटेगरी में आ ही जाता है. समटाइम्स दिस टाइप ऑफ मालएडेप्टेशन कैन बी क्योर बाय जनरल काउंसलिंग. हम अपनी फैमिली या फ्रेंड्स से हेल्प ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल काउंसलर. But there is a stigma in our Indian society. If you talk to people around, you will see that they have vague ideas about psychological disorders that are characterized by superstitions, ignorance, and fear. Again, it is commonly believed that psychological disorders is something to be ashamed of. हमारे यहाँ एक पर्सन अगर साइकोलॉजिस्ट के पास या काउंसलर के पास जा रहा होता है तो उसको किसके साथ जोड़ा जाता है? मैडनेस, एबनॉर्मल, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. उसको लोग मेंटल बोलना स्टार्ट कर देंगे, उसको अनस्टेबल मानेंगे, क्योंकि अब भी हमारे इंडियन कल्चर में साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, काउंसलर के पास जाना मालएडेप्टिव माना जाता है. लेकिन अब ये सोच काफ़ी हद तक बदल चुकी है. अब लोग समझने लगे हैं
कि साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास अगर कोई जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम ही होगी. कई बार नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है. देन अ काउंसलर हैव्स टू कोप विद स्ट्रेस. सो ये जो स्टिग्मा है साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर को लेकर, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है एबनॉर्मलिटी का हमारी सोसाइटी में फैलने का, क्योंकि पर्सन इन लोगों की हेल्प लेने से डरता है, सोचता है लोग क्या कहेंगे, जबकि साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर टेल हाउ टू लिव मेंटली एंड फिजिकली फिट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर. To understand psychological disorders, we would require a brief historical account of how these disorders have been viewed over the ages. Here, history is divided in three phases: ancient, medieval, and modern. And there are three approaches. The first is supernatural and magical forces such as evil spirits or the devil. The second is biological or organic approach. And the third is psychological approach. The first approach. For centuries, psychological disorders were viewed from a supernatural perspective attributed to a force beyond scientific understanding. उस समय एबनॉर्मल बिहेवियर को शैतानी शक्तियाँ या काली शक्तियों का प्रभाव माना जाता था और ऐसे लोगों को ओझाओं, शैमन या फिर प्रीस्ट के पास ले जाया जाता था. वहाँ पर इनको टॉर्चर किया जाता था, इनको जंजीरों से बांध कर रखा जाता था, भूखा भी रखा जाता था, कई बार तो इनको बहुत बुरी तरह से पीटा भी जाता था. सेकेंड, बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच. Biological perspective views psychological disorders as linked to biological phenomena such as genetic factor, chemical imbalances and brain abnormalities. A recurring theme in the history of abnormal psychology is the belief that individuals behave strangely because their brain and bodies are not working properly. In a modern era, there is evidence that body and brain processes have been linked to many types of maladaptive behavior. For certain types of disorders, correcting these defective biological processes results in improved functioning. Third is psychological approach. Despite advances in understanding the biological basis of psychological disorders, according to this point of view, psychological problems are caused by inadequacies in the way an individual thinks, feels, or perceives the world. All three of these approaches, supernatural, biological, and psychological approach, have recurred throughout the history of Western civilization. History of Western civilization. In the ancient Western world, it was philosophers, physicians of ancient Greece such as Hippocrates, Socrates, and in particular Plato, who developed organismic approach. They believed that disorders arise due to conflicts between emotion and reason. Socrates, Hippocrates, and Plato, who were the philosophers and physicians of Greece, they developed organismic approach. उनका ये मानना था कि disturbed behavior as arising out of conflicts between emotion and reason. यहाँ reason mean लॉजिक है. हमारे माइंड में टू साइड्स होती हैं, एक होती है लॉजिकल एंड द सेकंड इज इमोशनल. अब इन दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है वो जनरेट करता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को. बाय गैलन, 4 humors, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ. Galen elaborated on the role of 4 humors in personal character and temperament. According to him, the material world was made up of 4 elements like earth, air, fire and water. और इनमें से अगर कोई एक चीज़ कम या ज़्यादा हो जाती है तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जनरेट हो जाते हैं. By Hippocrates, 4 body fluids, blood, black bile, yellow bile and phlegm. हिपोक्रेटिस ने बताया कि अगर इन चारों में
डिसबैलेंस होता है, अगर ब्लड है या फिर ब्लैक बाइल है या येलो बाइल है या फिर फ्लैम है, इन चारों में कोई सा कंपोनेंट ज़्यादा या कम हो जाता है तो भी वो एबनॉर्मेलिटी को जनरेट करता है। अथर्ववेदा एंड आयुर्वेदिक टेक्स्ट, 3 दोषास वाता पित्ता एंड कफा। हमारे इंडियन आयुर्वेदा एंड अथर्ववेद में भी ये बताया गया है कि ये चारों फ्लड्स अगर बॉडी में बैलेंस्ड रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। 3 दोष हैं हमारे उसमें, वात पित्त और कफ। इन तीनों को मिलाकर ही पर्सनालिटी बनती है। ये तीनों हर एक व्यक्ति में पाए जाते हैं, बट किसी के अंदर कोई सा एलिमेंट डोमिनेट करता है तो किसी को दूसरा। अगर ये तीनों डिसबैलेंस हो जाएं तो इलनेस जनरेट हो जाती है। नाउ कम टू द मिडिल एजेस, 5 to 15th century. Demonology, superstitions. Saint Augustine wrote extensively about feelings, mental anguish and conflict. Middle age, demonology and superstitions gained renewed importance in the explanation of abnormal behavior. अब जेमनोलॉजी क्या है? जेमनोलॉजी related to a belief that people with mental problem were evil, and there are numerous instances of witch hunts during this period. उस समय मानसिक बीमारियों को बुरी आत्माओं का प्रकोप माना जाता था, उनको विच बोला जाता था, और ऐसे लोगों को या तो सारे लोग मिलकर जिंदा जला देते थे या फिर भगा देते थे, क्योंकि मिडिल एज का कंसेप्ट था जो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा था, इट मीन्स कि उस पर भूत प्रेत का साया है। मिडिल एज में एक बहुत नॉलेजेबल प्रीस्ट हुए थे, सेंट ऑगस्टाइन। इन्होंने बताया कि अगर कोई एक पर्सन नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा तो इसका रीज़न कोई डेविल नहीं है, बट उस पर्सन के जो इंट्रा पर्सनल रिलेशंस हैं उनमें कन्फ्लिक्ट की वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है। He told that if someone has frustration, anxiety, tension, then he can't behave normally. You know, students, that this laid the groundwork for modern psychodynamic theories of abnormal behavior. The next is the Renaissance period, 14th to 17th century. This period was marked by increased humanism and curiosity about behavior. रेनेसा पीरियड में लोगों को ह्यूमनिस्टिक वे में ट्रीट किया जाने लगा। उनको मारना, पीटना, जंजीरों से बांधना, घर गांव से बाहर निकालना बंद करके उनके बारे में कुछ अच्छा सोचा जाने लगा। विच इस वर्ड यूज ना करके उनको एक वर्ड दिया गया, मेंटली डिस्टर्ब। हियर जॉन वेयर emphasized psychological conflict and disturbed interpersonal relationships as causes of psychological disorders. जॉन वेयर ने भी सेंट ऑगस्टाइन की तरह कहा कि एबनॉर्मल बिहेवियर का रीज़न माइंड में चलने वाले कन्फ्लिक्ट्स हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिनके इंट्रापर्सनल रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, माइंड में किसी न किसी बात को लेकर कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, such type of people show abnormality in their behavior.